very important topic, that is how to know whether it is a balance or OD. So there are four important points are there which are very important for preparing DRS. चलो देखो, अगर मान लो एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक is given in the question, it means it is bank balance. कैसे, क्यों? See, this is your cash book, dear friend. Okay, and this is your passbook. Okay, I'm talking about right now bank column only. Bank column only. Suppose you deposit 50,000 rupees into bank, then receipt side, okay, here we have suppose bank column only, bank column. If you deposit cash, of course it is contra entry. You deposited 50,000 into bank. So your bank balance increases, and मान लो there is no transaction during the month, तो ये आपकी हो गई डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर. सपोज क्रेडिट साइड को एंट्री नहीं है, सपोज एज्यूम करो, तो ये 50,000 हो गई आपकी बैलेंस एज पर कैश बुक. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक बैलेंस. आप सोचो फ्रेंड, व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट जून 1st, तो जून 1st इफ यू डिपॉजिट by cash, credit side 50,000. So 50,000 rupees is your credit balance. It means if there is a credit balance as per passbook, then it is bank balance. Okay, friends. So this is point number 1. I repeat. Debit balance as per cash book is equal to bank balance. This is a proof. When you deposit money into bank, your bank balance increases and you debit the bank. At the same time, bank credits your account. So when there is credit and credit and credit in the passbook, means there is balance. Okay. But unfortunately, you have withdrawn more amount. Suppose till July 30th, the last date, suppose by X, Y, Z, you have issued so many checks, many times you have withdrawn money, and debit side items, these are the suppose 70,000. It means if the total of credit side is more, I'm talking about bank column only, dear friends, keep in your mind. अगर बैंक में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, then it is overdraft. So we can say if credit side is more, so we can say credit balance. And if it is a credit balance as per cash book, then it is bank overdraft. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैंक में नेगेटिव बैलेंस है. एंड एट द सेम मोमेंट, सी टिल different date, you have given check to Mr. XYZ and the total amount is 70,000. So it is your minus balance. It is your negative balance in the bank. So it indicates there is a debit balance in the passbook. Debit is more. So in the bank passbook, if credit is less, debit is more, it is your debit balance. It is your debit balance, means debit balance as per passbook is equal to बैंक ओवरड्राफ्ट. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब
एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है तो आपकी बैंक में बैलेंस है, लेकिन अगर कैश बुक में क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट हो जाता है। यहां पे डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट, उल्टा। सो फिर से बता दूं फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एट द सेम टाइम, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये दोनों चीज सेम है। ओके, और ये दोनों सेम। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक ओडी। और आप बताओ ट्रायल बैलेंस में भी क्या करते हो, बैंक बैलेंस डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, क्लियर। और जो भी कैश बुक में एज पर ट्रेडर्स बुक, उससे उल्टा होगा पासबुक में। इफ आई डेबिट बैंक्स अकाउंट देन बैंक क्रेडिट्स माय अकाउंट, क्लियर फ्रेंड्स। ओके, सो राइट डाउन। Hello friends, let's start now question of BRS. Say let us take the example of BRS. How to prepare BRS? This is the specimen, particular debit rupees and credit rupees, and you have to write the title BRS of so and so as on. It is prepared on a particular date. Okay. कैसे बनाते? When the differences arise between the balance of cash book and passbook. जो डिफरेंस आता है उनका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 4 बैलेंस भी आपको एक्सप्लेन की थी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वाला जो पॉइंट एक्सप्लेन किया था। मान लो अगर आप शुरू करते हो एज पर कैश बुक तो आपका आंसर आएगा एज पर पासबुक। आपको बनाना है छोटी सी वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है, कैश बुक एंड पासबुक, ये छोटी है। दिस इज नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। This is your working note. Okay. कैश बुक में अगर ये रिसीव में, ये आई हैव प्रिपेयर ओनली बैंक कॉलम। अगर रिसीव होता है आपका, डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है माइनस, मतलब पेमेंट, पेमेंट मतलब माइनस। अगर यहाँ पे आप रिसीव होता है पैसा तो डेबिट करते हो, देन इन पासबुक अगर क्रेडिट होता है तो बैंक बैलेंस प्लस होती है, डेबिट में माइनस। ये छोटा सा वर्किंग है, फिर से देख लो। अगर बैंक में आप पैसा डालते हो, चेक्स डालते हो, देन योर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। आप उनका डेबिट करते हो तो बैंक आपका क्रेडिट करते हैं। अगर बैंक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट होता है, व्हेन बैंक क्रेडिट्स योर अकाउंट देन योर बैंक बैलेंस इंक्रीज, व्हेन बैंक डेबिट्स योर अकाउंट देन बैंक बैलेंस डिक्रीज। ये सिंपल रूल। चलो अभी शुरू करते हैं। प्रिपेयर BRS ऑफ श्री गणेश, शुभ कार्य की शुरुआत गणेश के नाम से। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। Balance as per cash book rupees 33,000 as on 31/5/20. We have bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book. तो हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट साइड लिखेंगे 33,000, बैलेंस एज पर कैश बुक 33,000. ओके। Then the first entry check, second entry checks deposited 20,000, checks of rupees 20,000 were sent for collection. या तो वर्ड यूज होता है deposited, both are same. चेक deposited या तो sent for collection. बैंक में हमने चेक डाल दिया है। Of which checks of rupees 16,000 were collected by bank. मतलब ये एक रीजन मैंने दिया था कि अगर आप चेक डिपॉजिट करते हो, इन टाइम क्लियर नहीं होता है तो भी डिफरेंस आता है। सोचो, चलो मैं आपको वर्किंग बताता हूँ। वी हैव डिपॉजिटेड चेक्स इनटू बैंक, वी हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम वेरियस पर्सन लाइक X, Y, Z. सो वी हैव डिपॉजिटेड टोटल चेक्स ऑफ 20,000, मतलब वी हैव इंक्रीज बैंक बैलेंस 20,000। तो ये बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट हुआ सिर्फ 16,000।
सोचो फ्रेंड्स, चेक्स आपने डिपॉजिट किया 20,000, यू हैव इंक्रीज, यू मतलब कैश बुक हैज इंक्रीज द बैलेंस 20,000, बट इन बैंक 16,000 वेर क्रेडिटेड, तो डिफरेंस कितना आया? 4,000. यू डिपॉजिटेड 20,000 एंड बैंक हैज क्रेडिटेड 16,000, डिफरेंस आया 4,000, 4,000. ये सिंपल रूल याद रखना है आपको. डेबिट कितना है? 20,000. क्रेडिट कितना है? 16,000. क्रेडिट कितना नहीं है? 4,000. अगर आप क्रेडिट साइड पे 4,000 लिखो तो रिकंसिल हो जाएगा बैलेंस. वेरी सिंपल. डू व्हाट इज नॉट डन, डू व्हाट इज नॉट डन, अ सिंपल रूल. चलो 20,000 डेबिट हुआ है, 16,000 क्रेडिट हुआ है. अगर आप 4,000 क्रेडिट करो और आपको लिखना है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्लियर. वेरी सिंपल, जो एंट्री है वही आपको नरेशन लिखना है. थर्ड, ए चेक ऑफ ₹2500 वॉज इश्यूड ऑन 27/5. हमने चेक दे दिया है ऑन 27/5 विच वॉज नॉट प्रेजेंटेड टिल 31/5. आपने चेक दे दिया है किसी XYZ को, सो यू हैव गिवन ए चेक, सपोज मिस्टर ए को आपने चेक दिया 2500. जब आप चेक देते हो तो आप बैंक बैलेंस डिक्रीज करते हो. व्हेन चेक इज इश्यूड वी रिड्यूस द बैंक बैलेंस, हम डिक्रीज करते हैं. तो वी हैव क्रेडिटेड, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है. ये चेक अब तक आया नहीं, नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक. जब तक चेक नहीं आता बैंक डजंट पे, तो यहाँ ये 2500 का पेमेंट नहीं हुआ है. बस डू व्हाट इज नॉट डन. क्या नहीं हुआ है? डेबिट नहीं हुआ है. कितना? 2500. डू. वेरी सिंपल. चेक आपने इश्यू किया 2500, आपने क्रेडिट किया, यहां पे डेबिट नहीं हुआ है. जो नहीं हुआ है वो करो, आपका रिकंसिल हो जाएगा. एक और, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹700 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट आपका 700, और ये कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड. कैश बुक में एंट्री नहीं हुई. ऐसा होता है कभी कभी बैंक आपका इंटरेस्ट या कुछ भी क्रेडिट करते, देन बैंक इन्फॉर्म्स टू द ट्रेडर. ट्रेडर को लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो इन्फॉर्मेशन बहुत लेट हो गई है कैश बुक बनाने के बाद, सो इट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. क्या करोगे? सिंपल. यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट. क्या नहीं हुआ है? व्हाट इज नॉट डन? डेबिट. डू. Interest credited by bank was not recorded in cash book. Interest credited by bank was not recorded. Next entry. Bank debited ₹200 in the passbook for bank charges which was not recorded in the cash book. Bank has debited bank charges ₹200. See, bank charges ₹200 debited by the bank, or it should be credited in the cash book. अगर कैश बुक में ये क्रेडिट हो जाता, then there is no question of difference. Why we prepare VRS when the differences arise between the balance of cash book and passbook? At that time, to know the reason, क्यों डिफरेंस आया, at that time businessman prepares a statement, उसे लोग कहते हैं BRS. तो जब डिफरेंस नहीं आता है, अगर बैंक में जो भी एंट्री हुई है वो कैश बुक में भी हो गई है, नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस 200 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अगर हम रिकॉर्ड करते तो कहाँ करते? यहाँ पे डेबिट है तो हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट. वेरी गुड. तो लिखो क्रेडिट साइड 200. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो आपकी एंट्रीज खत्म हो गई. अभी क्या करोगे? 2 लाइन छोड़ो. दिस साइड विच साइड टोटल इज मोर. जैसे अकाउंट क्लोज करते हैं ऐसे क्लोज करो. सो 33,000 प्लस 2,500, 35,500 प्लस 700, 36,200. 36,200 लिखो. इसमें से 4,200 माइनस करो, तो ये जो आपका आंसर आया एज पर
वी हैव स्टार्टेड एज पर कैश बुक, तो ये हो गया एज पर पासबुक, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। एक बार फिर से मैं फटाफट बता दूं फ्रेंड्स, दिस वर्किंग इज एडवाइजेबल। अब छोटी कैश बुक बनाओ, छोटी पासबुक बनाओ और देखो कौन सी एंट्री कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है। जैसे एक बार मैं फिर से बता दूं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको पता है कि डेबिट ट्रायल बैलेंस याद करो, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 33,000। उसके बाद जो एंट्री है वो चेक्स ऑफ ₹20,000 डिपोजिटेड या तो सेंड फॉर कलेक्शन ऑफ विच 16,000 वेर क्रेडिटेड। सो आपने डिपॉजिट किया, आपने मतलब ट्रेडर ने, तो ट्रेडर उनकी बैंक बैलेंस इंक्रीज करेंगे 20,000 और यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 16,000। नॉट क्रेडिटेड हाउ मच 4,000। डू व्हाट इज नॉट डन, तो आपको 4,000 क्रेडिट करना है। उसके बाद चेक्स इश्यूड, a check of ₹25 issued which was not presented, not presented। तो आपने इश्यू किया तो पेमेंट साइड लिखा, क्रेडिट साइड लिखा, यहाँ पे डेबिट साइड आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। व्हाट इज नॉट डन, डेबिट डू। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹700, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 700, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने क्रेडिट किया तो हमें डेबिट करना है, वेरी सिंपल। बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमें डेबिट करना है। सेम स्टेटमेंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड। उसके बाद बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस 200 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस 200, बैंक ने डेबिट किया, हमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया, क्रेडिट करो, खत्म। फिर टोटल जो ग्रेटर साइड है वो दोनों साइड पुट करो जस्ट लाइक अकाउंट। सो द टोटल इज 36,200, डिफरेंस इज 32,000। ये अब हो गया आपका आंसर, आंसर बैलेंसेस पर पासबुक। सिंपल, अ वेरी सिंपल चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन।